Assalamu alaikum class. Welcome to online lectures for software requirement engineering. My name is Hasan Shah. Previous week we covered software requirement engineering till chapter 4 and we covered till section 4.5. Today we will talk about topic 4.6, which is quality criteria for requirements. During the lecture I'll be giving you some details in Urdu as well. So sit tight and listen to the lecture because I'll be preparing some quiz as well that you need to go through. Passing marks will be 50%. So do the readings and listen carefully so that you can easily answer the questions. Let's start with the quality criteria for requirements. Quality criteria for document requirements. Each document requirement should fulfill the following quality criteria. Well, there are certain criteria that should be present in a document. एक डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स या क्राइटेरियाज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो लेट्स वर्क आउट विद द फर्स्ट वन. इट सेज agreed. A requirement is agreed upon if it is correct and necessary in the opinion of all the stakeholders. तो stakeholders को जो requirements आप देंगे वो पहली बात तो ठीक होनी चाहिए और नेसेसरी उसके लिए ये चीज़ है कि जो ओपिनियन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर हैं वही फाइनलाइज करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने गदर की हैं वो किस हद तक ठीक है. अनएम्बिगुअस, ये we can see here that these ambiguity standards या requirement criteria जो quality criteria है ये IEEE वालों का है जो यहाँ पे भी लिखा गया है. A requirement that is unambiguously documented can be understood in only one way. मतलब है कि उसका एक मतलब होगा, उसके दो तीन मतलब नहीं निकाले जा सकते. जो लिखा गया है वही काम उस तरह ही करना है. It must not be possible to interpret the requirements in a different way. All readers of the requirement must arrive at the same understanding of the requirements. सबको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ जी हमने ये चीज़ बोली है और ये ऐसे ही किया जाएगा. Necessary. Once again, it's a criteria of IEEE, ISO देख लें. A document requirements must represent the facts and conditions of the system context in a way that is valid with regard to the actualities of the system context. तो system context के actual system context है क्या चीज़, किस context से आप चीज़ को उठा के ला रहे हैं. These actualities may be the different stakeholder ideas, relevant standards or interfaces टू एक्सटर्नल सिस्टम्स. नेसेसरी की बात ये जी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है इनमें से कौन से पार्ट को आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. एंड द थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ कि जी के वो जो कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ उठा रहे हैं वो चीज़ें आपने सिस्टम में किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है. अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, वी इन चैप्टर नंबर 2 वी डिस्कस द सिस्टम एंड कॉन्टेक्स्ट and we worked upon the diagram of system of context. उसमें जो लिंक्स थे बीच में, उन लिंक्स के अंदर आपको याद होगा वी रोट समथिंग कि इस कॉन्टेक्स्ट से क्या चीज़ सिस्टम के अंदर एंटर होगी. दिस इज़ व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट नेसेसरी. Let's talk about the next one is consistent. Requirements must be consistent with regard to all the other requirements. That is, the requirement must not contradict with one another regardless of the level of detail in documentation type. In addition, a requirement must be formulated in a way that allows for consistency with itself. That is, the requirements may not contradict itself. मीनिंग इसका यह है जी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में जब आप कहीं पे एक रिक्वायरमेंट को लिखते हैं और उसको आप फुली डिफाइन करते हो, तो उस चीज़ को जब आप किसी टेस्ट केसेस में या किसी और जगह पे लिखते हो तो इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट कि जी पीछे क्या बात की गई थी और टेस्ट केसेस के अंदर या इंटरफेस के अंदर या कोई आगे आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो उसके अंदर वो चीज़ एज इट इज़ होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कुछ चीज़ कम ही ना हो जाए, कुछ चीज़ कम ना हो, कुछ चीज़ ज़्यादा ना हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, verifiable. Again, the criteria of quality is met by IEEE standards. A requirement must be described in a way that allows for verification. means के verify होना लाजमी है.
This means that tests or measurements can be carried out that provide evidence of the functionality demanded by the requirements. If you remember कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात भी की थी, I drew a diagram on a board and I discussed कि जी वेरीफाई कहाँ किया जाता है चीज़ों को और वैलिडेट कहाँ किया जाता है चीज़ों को, तो ये वही वेरिफिकेशन की बात हो रही है. Next is feasibility. Again, there's a IEEE quality criteria here. It must be possible to implement each requirement given the organizational, legal, technical और financial constraints. Constraints को सामने रखना पड़ता है. feasibility देखी जाती है कि काम किया जा सकता है कि काम किया नहीं जा सकता. When it comes to legal, इसमें legal bindings क्या हैं आपकी, इसमें finance की पैसा कितना लगेगा, cost कितनी लगेगी, कितने साल में कर हम इसको बना सकते हैं. These are the feasibilities. This means that the member of the development team ought to be involved in rating the goals and requirements so that he can show the technical limits of the implementation of a particular requirement. अब टीम का मेंबर का उसके अंदर लाजमी होना चाहिए. डेवलपमेंट टीम की बात हो रही है, जिसने डेवलप करना है, डेवलपर्स बैठे होंगे आप लोगों के, दे शुड रेट कि जी ये काम हम लोग पहले कर सकते हैं या ये काम हम लोग लेट करेंगे, इस काम को जल्दी कर सकते हैं, इस काम को लेट कर सकते हैं. दीज आर दी फिजिबिलिटीज़. In addition, the cost of the implementation must be incorporated into the rating. अब कॉस्ट को उसने कहा है जी कि आप एज इट इज़ कॉस्ट ही लिख देते हैं, जबकि कॉस्ट को हम रेटिंग करवाते हैं कि लेट्स सपोज ये काम पहले किया जाए या इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इसको लो रेट किया जाए, इसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा. आगे कहते हैं जो ओकेशनली स्टेक होल्डर्स विदड्रॉ अ रिक्वायरमेंट इफ़ द कॉस्ट फॉर इट्स रियलाइजेशन बिकम्स अपेरेंट. तो वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं जी कि इस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए हम लोग कॉस्ट को डिस्कस नहीं करते फिजिबिलिटीज़ के अंदर. वी रेट देम. लेट्स टॉक अबाउट ट्रेसिबिलिटी. Again, there is a standard, IEEE standard for quality. A requirement is traceable if its origin as well as its realization and its relation to other documents can be traced. Relation to other documents की बात करते हैं तो if you remember we talked about कि जी there is a possibility कि आप ने कोई पायलट सिस्टम डेवलप किया हो और आप उसमें से कोई रिक्वायरमेंट्स को उठा के अपने नए प्रोजेक्ट के ना डाल रहे हो, तो यहाँ पे वो केस आता है. दिस कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ यूनिक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफायर्स. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना कि आपने वो कहाँ से उठाई हैं, अगर आपने कहीं से उठाई हैं तो, या अगर आपने लिखी हैं तो वो किसने बताई थी आप लोगों को. दीज आर द ट्रेसिबिलिटीज़. फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम गोल कैन बी ट्रेस थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्ट की बात की जा रही है कि अगर आप सिस्टम का गोल, एब्स्ट्रैक्ट क्या गोल है, आप चाहते हैं क्या बनाना. फ्रॉम डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, तो आप उसमें देखते हैं जी कि इसमें डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग जो है वो किस तरह है और उसके एब्स्ट्रैक्ट लेवल किस तरह हम काम करेंगे, टेस्ट केसेस किस तरह बनाएंगे, डिज़ाइन को किस इम्प्लीमेंट करेंगे. इन चीज़ों को फिर वो कहते हैं जी 8.4 सेक्शन में हम देखेंगे इंशाल्लाह. व्हेन वी टॉक अबाउट इट सेक्शन 8.4 तो हम उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन तो हम इसमें देखते हैं ट्रेसिबिलिटी विद इन द डॉक्यूमेंट देखी जाती है. पुराने डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है जी कि कहाँ से उठाया आपने. विद इन द डॉक्यूमेंट देखा जाता है जी कि कहीं पे अगर हम लेट्स सपोज चेंज करें कुछ रिक्वायरमेंट्स को तो उनको हम दूसरी जगहों पे भी चेंजेस उस तरह वो की जा सकें. और देन हमारे पास पोस्ट रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटीज़ आती हैं जिसके हम देखते हैं जी कि पोस्ट में देखा जाता है कि अगर हमने इसमें टेस्ट केस बनाने थे या इसको किसी कंपोनेंट में डालना था या हमने कोई इंटरफेस बनाना था तो हम इसको चेंजेस के बाद किस तरह चेंज करेंगे. Let's talk about complete. Another, it's a IEEE criteria for quality. Each individual requirement must completely describe the functionality it specifies. तो individual जो है वो requirements को specify करता है, उसकी functionality के बारे में बताता है. The requirements that are yet incomplete must be specifically marked. अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स आपने लिख रहे हैं इन द डॉक्यूमेंटेशन और वो भी कंप्लीट नहीं है तो उसके आगे आप लोग TBD लिखते हैं, दैट मीन्स टू बी डिटर्मिंड, into the respective text field or by setting a corresponding status. This marking can then be systematically searched and missing information can be amended accordingly. तो उनको अगर आप कोई टेम्पलेट उठाया हुआ है, आप उस टेम्पलेट पे कुछ चीज़ डाटा एंटर कर रहे हैं और या आपने कोई लेट्स सपोज अगर मैं मॉडलिंग में आ जाऊँ तो आप एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं इसकी, या आप इसकी एक्टिविटी डायग्राम के अलावा आप इसकी एक और डायग्राम होती है वो बना रहे हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम और आप उसको बाद में सर्च करके डालेंगे तो वहाँ पे आप उसके लिए कोई ऐसे कमेंट डाल देते हैं जो आपको बाद में याद रहे कि आपने वहाँ पे डालने हैं. तो इट हैज़ टू बी completed sooner or later, इसको छोड़ा नहीं जाता. Understandable. Requirements must be comprehensible
टू ईच स्टेक होल्डर, सबको समझ आनी चाहिए। देयरफॉर द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, हमने सेक्शन नंबर 4.2 देखा था, उसमें हमने डाटा प्रॉस्पेक्ट देखा था, हमने क्वालिटी वाला देखा था, फंक्शनैलिटी देखी थी हम लोगों ने ये, और उसके अलावा हमने देखा था जी के राइटिंग इन इंग्लिश में एम्बिग्विटी का क्या मसले आते हैं, कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। तो ये चेंजेस काफ़ी हद तक सिग्निफाई करती हैं चीज़ें जी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। काफ़ी टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट फेजेस जो भी चलेंगी, जिसमें स्टाफ भी आएगा आप लोगों का। इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रिक्टली डिफाइन द टर्म्स यूज, तो आपने वो सारे टर्म्स उसमें डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, along with quality criteria for requirements, there are two fundamental rules that enhances the readability of the requirements. रीडेबिलिटी जो लोग पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाए जाएं। अगर आप देखें हमारे पास ये भी जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपके सामने खोल के बैठा हूँ, इट हैज़ एटलीस्ट 4 5 6 लाइन्स पैराग्राफ्स, दैट इज़ मीन्स कि ये शॉर्ट सेंटेंसेज हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, लोग पढ़ सकते हैं, दे कैन रिमेंबर इट, मेमोराइज कर सकते हैं इस सेक्शन में क्या बात हुई थी। और नेक्स्ट है जी फॉर्मुलेट ओनली वन रिक्वायरमेंट पर सेंटेंस। तो मीन्स कि जी आप जब सेंटेंस लिखेंगे या पैराग्राफिंग करेंगे तो उसमें कोशिश करें कि आप लोग एक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, ना कि मल्टीपल्स के बारे में बात कर जाए। कोशिश करें जी एक्टिव वॉइस रखी जाए, ओनली वन प्रोसेस वर्ब इस्तेमाल किया जाए, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इंटरलेस्ड सेंटेंसेस मस्ट बी अवॉइडेड, और इस तरह चीज़ों से आप सेंटेंसेस को फुलफिल नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा एम्बिग्विटी से चल जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन ख़त्म करते हैं 4.6। विल कम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल टॉक अबाउट द ग्लॉसरी एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।